بغداد کے شاہی قید خانے کی ایک اندھیری کوٹھڑی میں ایک شخص دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کوٹھڑی کے باہر جلاد اپنی تلوار تیز کر رہا تھا اور اس کی ساں ساں کی آواز قیدی کے دل پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو۔ یہ قیدی کوئی چور یا ڈاکو نہیں تھا، بلکہ شہر کی جانی مانی شخصیت حکیم بو علی تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اصل میں ایک معمولی جلاحہ تھا جو محض ایک جھوٹ کے سہارے محل تک جا پہنچا تھا۔ اس کی زندگی اب ختم ہونے والی تھی کیونکہ خلیفہ ہارون الرشید کو ایک معمولی سی چھینک آئی تھی اور اسی چھینک نے اس جعلی حکیم کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اب اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی حکیم ہے، ورنہ سورج نکلنے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی جانی تھی۔ یہ کہانی ایک سخت گرم دوپہر سے شروع ہوتی ہے۔ بو علی کپڑا بننے کا کام کرتا تھا اور بہت غریب تھا۔ اس کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ محنت سے تو بس 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، لیکن اگر عقل سے کام لیا جائے تو بڑی دولت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی پرانی لوم توڑ دی، ایک لمبا کرتا پہنا اور سر پر ایک بھاری پگڑی باندھ لی، جسے دیکھ کر وہ کسی بڑے عالم یا حکیم جیسا لگنے لگا۔ پھر وہ بازار کے بیچوں بیچ جا کھڑا ہوا اور زور زور سے اعلان کرنے لگا کہ وہ یونان اور مصر کی خاک چھان کر آیا ہے اور ہر بیماری کا علاج جانتا ہے، یہاں تک کہ مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع ہو گیا۔ کوئی سر درد کا پوچھتا تو وہ اسے مٹی کی ایک پڑیا تھما دیتا، کوئی پیٹ درد کی شکایت کرتا تو کہتا کہ تم نے الٹے ہاتھ سے پانی پیا ہے، اسی لیے یہ درد ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کچھ باتیں اتفاق سے درست نکل آتی اور لوگ اسے واقعی بہت بڑا حکیم تصور کرنے لگے۔ ابھی وہ بازار میں اپنی جھوٹی شہرت کے جھنڈے گاڑ ہی رہا تھا کہ اچانک شاہی سواری وہاں سے گزری۔ خلیفہ کے وزیر خاص جعفر برمکی گھوڑے پر سوار تھے۔ اچانک گھوڑا رکا اور وزیر کو ایک زوردار چھینک آئی۔ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچے، پھر ایک کے بعد ایک چھینک آنے لگی جیسے چھینکوں کا ایک تانتا لگ گیا ہو۔ وزیر کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور وہ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ سپاہی گھبرا گئے اور چلانے لگے کہ کوئی ہے جو وزیر کی جان بچا سکے۔ شاہی حکیم آگے بڑھے اور طرح طرح کی دوائیں سنگھائیں، لیکن چھینکیں پھر بھی نہ رکیں۔ یہ دیکھ کر بو علی نے دل میں سوچا کہ آج یا تو قسمت جاگ جائے گی یا جان چلی جائے گی۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے آیا اور اونچی آواز میں بولا کہ سب پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کام ان حکیموں کے بس کا نہیں۔ اس نے کہا کہ وزیر کے دماغ میں ہوا پھنس گئی ہے اور صرف وہی اسے باہر نکال سکتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی پڑیا نکالی جس میں اصل میں پسی ہوئی سوکھی مرچیں اور کچھ جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس نے وہ پڑیا وزیر کی ناک کے قریب لے جا کر زور سے پھونک ماری۔ جیسے ہی مرچوں کا سفوف ناک میں گیا، وزیر کو ایک بہت زوردار چھینک آئی، ایسی کہ پاس کھڑے سپاہی بھی دہل گئے۔ لیکن اس ایک زوردار چھینک کے بعد وزیر کی حالت سنبھل گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جعفر برمکی نے حیرت سے بو علی کو دیکھا اور کہا کہ تم نے تو کمال کر دیا۔ شاہی حکیم ہاتھ ملتے رہ گئے مگر تم نے وزیر کو شفا دلا دی۔ اسی وقت اسے خلیفہ کا خاص حکیم مقرر کر دیا گیا۔ بو علی کو محل لے جایا گیا جہاں اسے قیمتی لباس اور بہترین کھانا دیا گیا، مگر جعفر برمکی نے اسے تنہائی میں بلا کر صاف صاف کہہ دیا کہ خلیفہ کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اگر تمہارا علاج کامیاب رہا تو تمہیں سونے میں تولا جائے گا، لیکن اگر کبھی غلط تشخیص ہوئی یا خلیفہ کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہی ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ یہ سن کر بو علی کے ہوش اڑ گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے خود اپنے گلے میں موت کا پھندا ڈال لیا ہو۔ وہ ساری رات سو نہ سکا۔ اسے رہ رہ کر یہی لگتا تھا کہ اب ہر چھینک اس کی موت کا پیغام لے کر آئے گی۔ اگلی صبح خلیفہ دربار میں تشریف لائے تو وہ بہت برہم تھے۔ معلوم ہوا کہ رات بھر ان کے دائیں کان میں ساں ساں کی آواز آتی رہی اور وہ سو نہ سکے۔ بو علی کو طلب کیا گیا۔ وہ ڈرتا کانپتا خلیفہ کے قریب گیا۔ اس نے کان دیکھنے کا ڈھونگ کیا، مگر دراصل وہ کمرے کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ جس ریشمی تکیے پر سر رکھتے ہیں اس کے کونے سے ایک سخت دھاگا نکلا ہوا ہے۔ بو علی سمجھ گیا کہ کروٹ بدلتے وقت وہ دھاگا کان سے رگڑ کھاتا ہوگا۔ اس نے عقل مندی سے کہا کہ حضور کان میں کوئی بیماری نہیں بلکہ تکیے میں کسی شریر جن کا بال پھنسا ہوا ہے۔ جب تکیہ کھولا گیا تو وہ سخت دھاگا برآمد ہوا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ خلیفہ بہت خوش ہوئے اور بو علی کو بڑا انعام دیا۔ اب بو علی خود کو واقعی بڑا حکیم سمجھنے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ اپنی لفظ بازی سے سب کو بے وقوف بنا سکتا ہے۔ کچھ دن بعد محل میں ایک بڑی دعوت تھی۔ خلیفہ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک انہیں چھینک آئی۔ چھینک کے ساتھ ہی انہوں نے پیٹ میں تیز درد محسوس کیا اور فوراً بو علی کو بلایا۔
खलीफा ने कहा कि हकीम, इस छींक के बाद मेरे पेट में अजीब मरोड़ उठ रहे हैं। बू अली घबरा गया, मगर अपनी आदत के मुताबिक उसने बात बना ली। उसने कहा कि हुजूर, ये छींक नहीं बल्कि जिस्म की अंदरूनी गर्मी का असर है, और इसका वाहिद इलाज ये है कि आप 3 दिन तक कच्ची प्याज का रस पिएं और रात को उल्टे पांव एक लकड़ी पर खड़े होकर सोएं। ये अटपटा इलाज सुनकर खलीफा आग बगोला हो गए। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस जुलाहे को कैद खाने में डाल दिया जाए। अगर 3 दिन में मेरा दर्द ठीक ना हुआ तो इसे ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। अब बू अली फिर उसी अंधेरी कोठड़ी में था और बाहर चलाद तलवार तेज कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। अब सवाल ये था कि क्या एक जुलाहा अपनी जबान के जोर पर मौत से बच सकेगा? बू अली कैद खाने की सलाखों के पीछे बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था। बाहर पहरेदारों के भारी कदमों की आवाज उसे अपनी मौत की आहट मालूम होती थी। खलीफा हारून रशीद का गुस्सा पूरे बगदाद में मशहूर था, और अब मामला उनकी अपनी जात और शाही वकार का था। बू अली ने सोचा था कि वो बादशाह को डराकर अपनी अहमियत मनवा लेगा, मगर उसे क्या खबर थी कि प्याज का रस पीने का मशवरा उसे सीधा सूली के फंदे तक ले आएगा। इस अंधेरी रात में उसे अपना वो छोटा सा घर याद आ रहा था जहां वो सुकून से कपड़ा बुनता था। उसने दिल ही दिल में कहा, काश मैंने अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश ना की होती। मगर अब पछताने का वक्त गुजर चुका था। वो जानता था कि अगर उसे यहां से जिंदा निकलना है तो फिर इसी जबान का सहारा लेना होगा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। अगली सुबह जाफर बरमकी कैद खाने में आए। उनके चेहरे पर नरमी भी थी और सख्ती भी। उन्होंने कहा, ए हकीम, बादशाह सलामत तुम्हारी बताई हुई दवा यानी प्याज का रस पी रहे हैं, मगर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। वो फरमाते हैं कि अगर कल सुबह तक दर्द ठीक ना हुआ तो तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि लोग याद रखेंगे। क्या तुम अपनी दिफा में कुछ कहना चाहते हो? बू अली का दिमाग बिजली की तेजी से चलने लगा। वो जान गया कि अगर उसने सच मान लिया तो इसी वक्त कत्ल हो जाएगा। उसने गहरा सांस लिया, चेहरे पर इत्मीनान का पर्दा चढ़ाया और बोला, वजीर मोहतरम, बादशाह से अर्ज कीजिए कि प्याज का रस तो पी रहे हैं, मगर क्या वो उस खास लकड़ी पर खड़े हो रहे हैं जिसका मैंने जिक्र किया था? असल असर तो इसी तवाज़न से पैदा होता है। और एक बात और, दवा उस वक्त काम करती है जब दिल में आजिज़ी हो, क्योंकि तकब्बुर शिफा को नुकसान पहुंचाता है। जाफर बरमकी ये सुनकर चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि शायद इस शख्स के पास वाकई कोई पोशीदा इल्म है। उन्होंने जाकर बादशाह को सब कुछ बता दिया। खलीफा इस वक्त प्याज की बू से सख्त बेजार थे और पेट में जलन भी थी, इसलिए और भी आग बगोला हो गए। उन्होंने हुक्म दिया, इस हकीम को दरबार में पेश किया जाए। मैं खुद इससे पूछूंगा कि ये कैसा अजीब इलाज है। बू अली को दरबार में लाया गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। खलीफा ने गरज कर कहा, ए जुलाहे नमा हकीम, हमने तुम्हारी बात मानी, मगर फायदा रत्ती भर ना हुआ। पूरा महल प्यास की बदबू से भभक रहा है और हमें नींद तक नहीं आ रही। बताओ, तुम्हें क्यों ना अभी मौत के घाट उतार दिया जाए? बू अली ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूरे वाला, फायदा इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप दवा तो ले रहे हैं मगर उसकी हिकमत पर गौर नहीं कर रहे। ये रस उस गर्मी को बाहर निकाल रहा है जो उस मनहूस छींक से पैदा हुई थी। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आज कान में वो सांसा की आवाज नहीं आई? खलीफा रुक गए। उन्होंने सोचा तो वाकई वो आवाज वापस नहीं आई थी। उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। बू अली ने मौका देखकर एक और चाल चली। बादशाह सलामत, असल फैसला आज रात होगा। आपको महल के सबसे ऊंचे मीनार पर आराम करना होगा, जहां बगदाद की ठंडी और साफ हवा दवा के असर को मुकम्मल करेगी। अगर कल सुबह आप खुद को बेहतर महसूस ना करें तो मेरा सर हाजिर है। ये बहुत बड़ा जुआ था। बू अली जानता था कि ठंडी हवा और सुकून की नींद बादशाह की तबीयत बहाल कर देगी। खलीफा ने आखिरी मौका देते हुए ये बात मान ली। उस रात बू अली को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया जहां से मीनार नजर आता था। वो सारी रात गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहा। उधर बादशाह मीनार पर पहुंचे। ठंडी हवा चली और प्यास के रस की वजह से होने वाली नईफत ने उन्हें ऐसी गहरी नींद सुला दी जो मुद्दतों से नसीब ना हुई थी। अगली सुबह खलीफा बेदार हुए तो जिस्म हल्का महसूस हुआ और पेट का बोझ खत्म हो चुका था। वो खुशी से बोले, कहाँ है वो हकीम? उसे फौरन दरबार में लाओ। बू अली को लगा कि शायद अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। सिपाही उसे दरबार में ले आए।
मगर बादशाह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ए अबू अली, तुमने कमाल कर दिया। दवा कड़वी थी मगर असर कर गई। हुक्म हुआ कि अबू अली को कीमती जेवरात से सजे घोड़े पर बैठाकर पूरे बगदाद में घुमाया जाए। लोग तालियां बजा रहे थे, मगर अबू अली के दिल में डर अब भी बैठा था। वो सोच रहा था, अगर अगली बार कोई वाकई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या होगा। इसी हुजूम में उसने एक पुराने दोस्त को देखा जो उसे जुलाहे के रूप में जानता था। दोस्त ने आंख मारी और आहिस्ता से कहा, अबू अली, अब कपड़ा नहीं तकदीर बुन रहे हो, मगर याद रखना, जिस दिन धागा टूटा सब खुल जाएगा। अबू अली चौंक उठा। इसी लम्हे एक शाही सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हकीम साहब, फौरन महल चलें। शहजादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और बादशाह ने सिर्फ आपको तलब किया है। अबू अली के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। इस बार मामला बादशाह का नहीं, शहजादी का था। अबू अली के पांव तले से जमीन निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऊंची जगह से सीधा गहरे कुएं में गिर गया हो। चंद लम्हे पहले वो पूरे बगदाद में मशहूर था, मगर अब उसे ऐसी शहजादी का इलाज करना था जिसकी जरा सी तकलीफ पर खलीफा अपनी पूरी सल्तनत कुर्बान कर सकता था। सिपाही उसे तकरीबन घसीटते हुए महल के उस हिस्से में ले गए जहां आम आदमी का दाखिला मना था। खलीफा हारून और रशीद बेचैनी से टहल रहे थे। जैसे ही उनकी नजर अबू अली पर पड़ी, वो आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ा और भरी हुई आवाज में कहा कि उनकी बेटी 2 दिन से न कुछ खा रही है, न पी रही है और न किसी से बात कर रही है। बड़े बड़े हकीम आकर देख चुके हैं। किसी ने नजर का कहा, किसी ने बुखार बताया, मगर कोई दवा काम नहीं आई। खलीफा ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर अबू अली ने शहजादी को ठीक कर दिया तो वो उसे आधी सल्तनत दे देंगे, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अबू अली का मुंह खुश्क हो गया। उसने दिल में सोचा कि प्याज का रस तो बादशाह पी सकता था, मगर एक मासूम शहजादी को वो क्या देगा। उसे कमरे के अंदर ले जाया गया। एक रेशमी पर्दे के पीछे शहजादी लेटी हुई थी। अबू अली को इजाजत दी गई कि वो पर्दे के बाहर बैठकर एक बारीक धागे के जरिए उसकी नब्ज देखे। हकीकत ये थी कि अबू अली को नब्ज देखने का कोई इल्म नहीं था। उसने धागा पकड़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने कमरे का माहौल महसूस किया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर बाहर किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ रही थी। उसे अपना वो जमाना याद आ गया जब वो जुलाहा था और काम खराब होने पर खामोश होकर बैठ जाता था। उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने पर्दे के पीछे से शहजादी की खादमा को बुलाया और पूछा कि शहजादी की तबीयत खराब होने से एक दिन पहले क्या खास बात हुई थी। खादमा ने डरते हुए बताया कि कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बस शहजादी का प्यारा तोता जो उससे बातें करता था पिंजरे से उड़ गया था और तब से शहजादी खामोश हो गई है। अबू अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे असल मसला समझ आ गया था। ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि गम था जिसे शाही हकीम दवाओं से ठीक करना चाह रहे थे। मगर वो ये बात सीधी तरह नहीं कह सकता था, वरना उसकी हकीमी का असर खत्म हो जाता। वो खलीफा के पास गया और निहायत संजीदा लहजे में बोला। उसने कहा कि शहजादी को एक खास मर्ज है जिसे यूनानी तिब में खामोशी का जार कहते हैं। उसने कहा कि इसका इलाज ना किसी दवा में है और ना प्याज के रस में, बल्कि एक खास जादुई परिंदे की आवाज में है जो बगदाद के बाजार में एक मखसूस फकीर के पास मिलता है। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया कि पूरे बगदाद के फकीरों को इकट्ठा करके वो परिंदा तलाश किया जाए। अबू अली ने फौरन कहा कि वो परिंदा कोई और नहीं ला सकता, उसे खुद जाना होगा, क्योंकि वो सिर्फ हकीम की आवाज पर बोलता है। असल में अबू अली महल से बाहर निकलना चाहता था ताकि किसी तरह तोते का बंदोबस्त कर सके। बादशाह ने इजाजत दे दी। अबू अली बाजार गया, अपने पुराने दोस्त को ढूंढा और उससे कहा कि एक ऐसा तोता लाए जो बातें करता हो और शहजादी के तोते जैसा लगे। दोस्त एक खूबसूरत और बोलने वाला तोता ले आया। अबू अली तोते को कपड़े में छुपाकर महल वापस आया। उसने खलीफा से कहा कि सब लोग कमरे से बाहर निकल जाएं और वो अकेले पर्दे के पीछे जाएगा। जब सब चले गए तो उसने तोते को पर्दे के करीब लाकर बाहर निकाला। तोता फौरन बोल उठा और महल और शहजादी को पुकारने लगा। शहजादी ने आवाज सुनी तो चौंक गई। उसने आंखें खोली और समझा कि उसका पुराना तोता वापस आ गया है। उसने कमजोरी से पर्दा हटाया, तोते को देखा और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में चान आ गई। उसने तोते को हाथ पर बिठाया और दाना डालने लगी। कुछ देर बाद अबू अली बाहर आया और खलीफा को बताया कि शहजादी ने खाना शुरू कर दिया है और बीमारी खत्म हो गई है।
खलीफा अंदर गए तो अपनी बेटी को हंसता खेलता देखकर खुशी से भर गए। उन्होंने बू अली को गले लगा लिया और कहा कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है और आज से वो सिर्फ हकीम नहीं बल्कि उनका खास मुशीर भी होगा। बू अली के पास अब दौलत की कोई कमी ना थी, मगर जैसे जैसे उसका मर्तबा बढ़ा वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। महल के पुराने और पढ़े लिखे हकीम उससे जलने लगे। उन्हें यकीन था कि बू अली कोई धोखेबाज है। उन्होंने उसे नीचा दिखाने के लिए एक साजिश तैयार की। एक दिन दरबार में सबसे बड़े शाही हकीम ने खलीफा के सामने कहा कि अगर बू अली वाकई सच्चा हकीम है तो उसका इम्तिहान लिया जाए। 10 बोतलें रखी जाएंगी जिनमें मुख्तलिफ रंगों का पानी होगा और बू अली को सिर्फ देखकर बताना होगा कि कौन सा जहर है और कौन सा मुफीद पानी। ये सुनकर बू अली का रंग उड़ गया। उसे मालूम था कि ये उसके बस की बात नहीं, ये उसके लिए एक नया मौत का जाल था। बू अली दरबार के बीच खड़ा था। उसके सामने मेज पर 10 एक जैसी शीशे की बोतलें रखी थीं। सब में बिल्कुल साफ पानी नजर आ रहा था, मगर शाही हकीमों का कहना था कि इनमें से एक बोतल में खतरनाक जहर है और बाकी में आम पानी या शरबत। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें बू अली पर जमी हुई थीं। खलीफा हारून रशीद खामोशी से सब देख रहे थे और बू अली के मुखालिफ हकीमों के चेहरों पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो यकीन रखते थे कि आज बू अली का झूठ सबके सामने आ जाएगा। बू अली का जिस्म पसीने से भीग चुका था। उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। उसने दिल में सोचा कि अगर उसने जहर वाली बोतल पी ली तो वो मर जाएगा और अगर गलत फैसला किया तो खलीफा उसकी जुबान कटवा देगा। इसी लम्हे उसने दिल से अल्लाह से माफी मांगी और अपनी चालाकी पर शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि झूठ इंसान को महल तक तो ले जा सकता है मगर दिल का सुकून छीन लेता है। इसी दौरान उसकी नजर एक बात पर गई। सब बोतलें एक जैसी थीं, मगर एक बोतल के गिर्द एक मक्खी बार बार आकर बैठ रही थी। बू अली ने गौर किया तो देखा कि मक्खी सिर्फ इसी बोतल के पास मंडला रही है। उसके जहन में फौरन ख्याल आया कि अगर इसमें जहर होता तो मक्खी मर जाती और अगर ये सादा पानी होता तो मक्खी इसमें दिलचस्पी ना लेती। जरूर इसमें कुछ मीठा जैसे शहद या शरबत मिला हुआ है। मगर बू अली जानता था कि दुश्मन हकीम इतना आसान खेल नहीं खेलेंगे। उसने एक नजर उन हकीमों के चेहरों पर डाली। उनमें से एक हकीम बार बार एक खास बोतल की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। बू अली समझ गया कि असल जहर उसी बोतल में है। उसने गहरा सांस लिया और बुलंद आवाज में कहा। उसने कहा कि ये इम्तिहान उसके इल्म का नहीं बल्कि इन हकीमों की नीयत का है। उसने कहा कि वो जहर की पहचान भी कर सकता है, मगर वो ये दिखाना चाहता है कि सच्चा हकीम वो है जो जहर को भी जिंदगी में बदल दे। ये कहकर उसने वो बोतल उठाई जिस पर मक्खी बैठ रही थी और सबके सामने एक ही सांस में पी ली। दरबार में शोर मच गया। खलीफा अपनी जगह से खड़े हो गए। सबको लगा कि बू अली अब गिर पड़ेगा, मगर वो मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि ये जहर नहीं बल्कि मेहनत का मीठा नतीजा है। फिर उसने उस दूसरी बोतल की तरफ इशारा किया जिसे देखकर वो हकीम डर रहा था और कहा कि असल जहर इसमें है। जब वो बोतल एक कुत्ते के सामने डाली गई तो कुत्ता फौरन मर गया। खलीफा को सख्त गुस्सा आ गया। उन्होंने साजिश करने वाले हकीमों को कैद करने का हुक्म दिया और बू अली को गले लगाकर कहा कि वो वाकई बड़ा इंसान है और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। इसी लम्हे बू अली के अंदर का सादा जुलाहा जाग उठा। अब उसे दौलत और शोहरत से डर लगने लगा था। उसने अपनी पगड़ी खलीफा के कदमों में रख दी और रोते हुए कहा कि वो असल में कोई हकीम नहीं बल्कि बगदाद का एक गरीब जुलाहा है। उसने इतराफ किया कि उसने भूख की वजह से झूठ बोला और ये सब महज इत्तेफाक का था कि तकिया फटा हुआ निकला या शहजादी का तोता उड़ गया। उसने कहा कि वो इस इज्जत के काबिल नहीं है। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। खलीफा पहले गुस्से में आए, मगर फिर उन्हें बू अली की वो सब बातें याद आईं जिनमें अकल और समझ पोशीदा थी। उन्होंने सोचा कि अगर एक आम जुलाहा अपनी अकल से बादशाह और शहजादी की मदद कर सकता है तो वो किसी बड़े हकीम से कम नहीं। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा कि बू अली का सबसे बड़ा इलाज उसका सच है जो उसने आज बोल दिया। उन्होंने कहा कि झूठे हकीम बनकर जीने से बेहतर है कि इंसान सच बोलकर जिए। खलीफा ने बू अली को सजा देने की बजाय बगदाद के शाही में बसे में भेजने का हुक्म दिया ताकि वो बाकायदा इल्म हासिल करे और एक दिन सच्चा हकीम बनकर लोगों की खिदमत करे। बू अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खलीफा का शुक्रिया अदा किया और महल से निकल आया। इस बार वो हीरों और जवाहरात के बोझ के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के सुकून के साथ जा रहा था। इसके बाद उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और चंद बरसों में वो वाकई बगदाद का एक ईमानदार और बड़ा हकीम बन गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्ल और जबान के जोर पर वक्ती कामयाबी तो मिल सकती है,
मगर असल सुकून और इज्जत सिर्फ सच में है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई कामयाबी कभी भी टूट सकती है। बू अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खलीफा का शुक्रिया अदा किया, और जबकि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है मगर अंजाम हमेशा बेहतर होता है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।